Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you are doing great for your NORCET preparation. And today is our class 3 on personality disorder of psychiatry or mental health nursing topic. So in this lecture we will basically study about each and every personality disorder and the important point that is asked in the exam. Okay, so start करते हैं with the topic. And before study the personality disorder, first we have to understand the normal personality traits that is present in a person, right? So commonly we have 5 types of personality traits, right? First one is openness. It means openness to experience, that is novelty seeking or sensation seeking. Means the person is open, they love to travel, they love the arts, है ना? So like that of a person, that is said openness to experience, right? Second one is conscientiousness. It means something that is very related to डिसिप्लिन, पंक्चुअल, है ना, ड्यूटीफुल, बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहते हैं ना, सो दैट इज कॉन्सेंट्रियसनेस. थर्ड वन इज द एक्स्ट्रावर्जन. एक्स्ट्रावर्जन मीन्स लाइक दे लव द टॉकेटिव, है ना, वेरी एनर्जेटिक होते हैं, they love the social interaction, है ना, so that is the extraversion. Fourth one is the agreeableness. Agreeableness means कि they agree in everything, है ना, so they are very helpful, empathetic, आप जो भी बोलोगे they get agree, है ना, so that is the agreeableness traits. And the fifth one is neuroticism. So neuroticism means in that they have the tendency to experience negative emotions. Emotional instability बहुत ज़्यादा होती है, आप कुछ भी बोलोगे तो वो बहुत जल्दी दिल पे ले लेंगे, kind of that person, ठीक है. So we have that 5 type of personality traits. So anything that is more than this or less than this is termed as personality disorder, right? So personality disorder is according to DSM-5. So according to DSM-5, like in the psychiatric we have 2 classification of disease. First one is like ICD-10 or 11 and second is the DSM-5. So according to DSM-5, personality disorder is divided into 3 clusters. It is cluster A, B and C. And in all these 3 clusters we have like specific things that we have to learn for the exam point, ठीक है. So cluster A में जो पर्सन होंगे, the cluster A considered to be on a schizophrenia continuum. It means it is in between the like normal to schizophrenia के in between जो होगा, that is termed as cluster A. So cluster A में first हमारा है paranoid personality disorder, very important. So paranoid personality disorder में क्या होगा, the person is very suspiciousness, keep grudges, conspiracy theory, like a person in the office is sitting and the 2 of their colleagues is talking. So what he think कि वो जो दोनों जो बातें कर रहे हैं ना, वो मेरे बारे में ही कुछ गलत बातें कर रहे हैं, है ना. So that kind of suspiciousness होगा. And let's suppose आपने उसके साथ कुछ किया है, so that person keep grudges for long time. Even he or she will write in a diary कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, so वो grudges रखेगा. And conspiracy theory, उसको लगेगा सब उसके against कुछ theories कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ना. सो लाइक इन द ऑफिस अगर बॉस ने कुछ फीडबैक दिया सबको, तो उसको लगेगा कि वो कुछ गलत ही उसके लिए वो फीडबैक है ना, कुछ गलत ही उसके लिए कॉन्स्पिरेसी हो रही है. सो दैट काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वो हर चीज में करेगा. एंड एक्सेसिवली सेंसिटिव, लाइक मे गेट ऑफेंडेड इवन बाय द जोक. सिंपल जोक भी अगर हम बोलेंगे तो वो खुद को ले लेगा एंड ऑफेंड हो जाएगा. सो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज टर्म्ड एज paranoid, है ना. So paranoid personality disorder, suspiciousness, keep grudges, conspiracy theories and excessive sensitive. ये 4 वर्ड्स आपको याद रखना है बिकॉज एग्जाम में ऐसे ही आता है, ठीक है ना. एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट? सो ऑल द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, द मेन मैनेजमेंट इज साइकोथेरेपी, राइट. इफ साइकोथेरेपी डज नॉट इम्प्रूव, then medical management like antipsychotics, antidepressants, benzodiazepines based on their symptoms. So in paranoid personality disorder, the main management is the psychotherapy, and other than that like benzodiazepines हो गया और antipsychotics drugs. So that is the management. So ये हमारा paranoid personality disorder था. सेकेंड हमारा है schizoid personality disorder. So what is in schizoid personality disorder? A man who love to live alone.
ही डज नॉट वांट कि उसके साथ कोई और रहे, he love to live alone, he love to do the activities that needs not anyone interaction, है ना. So he is very emotionally cold. अगर फैमिली में कुछ like कुछ sad हैपेंड होता है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ही इज वेरी इमोशनली कोल्ड, कुछ एक्सप्रेस नहीं करेगा कि हाँ ये हो गया, है ना, मतलब डिटैच्ड रहेगा. एंड ही लव टू डैट, है ना, ही लव टू डैट वे, कि उसको अच्छा लग रहा है, यानी कि उसको लगेगा नहीं कि हाँ ये कुछ एबनॉर्मल मेरे साथ है, उसको वो अच्छा लगेगा, सॉलिटरी एक्टिविटीज उसको अच्छा लगेगा. सो दैट इज द सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. सो प्रेफर सॉलिटरी एक्टिविटीज, लॉस्ट इन डे ड्रीम्स, फैंटेसीज, खुद के ही उसमें खोया रहेगा. इमोशनली बहुत कोल्ड एंड डिटैच्ड होगा. एंड इनडिफरेंट टू प्रेज और क्रिटिसिज्म बिकॉज ही लव टू लिव अलोन. सो उसको फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इसको प्रेज करे या क्रिटिसाइज करे. ही इज इनडिफरेंट टू प्रेज और क्रिटिसिज्म एंड वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटीज. सो दैट इज द सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. एंड अगेन द मैनेजमेंट इज psychotherapy, benzodiazepines, antipsychotics or antidepressants depending on the symptoms, but the main thing is psychotherapy. ठीक है. देन थर्ड वन इज सिजोटिपल. सो क्लस्टर ए में हमारा पैरानॉइड, सिजॉइड एंड सिजोटिपल. स्किजोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होगा, दैट इज समथिंग लाइक द मैजिकल थिंकिंग, है ना. he or she will believe in some magical thinking, बहुत odd eccentric behavior होगा, है ना. So very odd and eccentric thinking and behavior होगा, magical thinking होगा, है ना. And because of very odd and eccentric thinking and behavior, his or her way of communication is also very strange, है ना. So very strange ways of communication, like the other person can't understand कि वो क्या बोलना चाहता है ना. So may be difficult to understand and lack of close relationship. सो इन सिजॉइड में भी क्या है कि जो क्लोज रिलेशनशिप है वो अब्सेंट है, और यहाँ पे भी. बट इन सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या है ना कि ही लव टू लीव अलोन, उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको वो अच्छा लग रहा है. बट यहाँ पे सिजोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या है कि ही वांट कनेक्शन, बट बिकॉज ऑफ देयर ऑड इसेंट्रिक बिहेवियर और थिंकिंग की वजह से लोग उसके पास रहना नहीं चाहेंगे. सो दैट इज द डिफरेंस थोड़ा सा, ठीक है ना. सो सिजोटिपल वेरी इंपॉर्टेंट, दो लाइन याद रखना आपको, ऑड इसेंट्रिक थिंकिंग एंड बिहेवियर और मैजिकल थिंकिंग होगा, ठीक है ना. एंड बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ क्लोज रिलेशनशिप. मैनेजमेंट अगेन दैट इज साइकोथेरेपी, बेंजोडाइजेपिन्स एंड एंटीसाइकोटिक्स ड्रग, राइट. एंड अकॉर्डिंग टू ICD-11 क्लासिफिकेशन, उसमें जो है स्किजोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया गया है अंडर साइकोटिक डिसऑर्डर के अंडर, है ना. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. सो दैट इज आवर क्लस्टर ए. क्लस्टर ए के 3 कंप्लीट हो गए, दैट इज पैरानॉइड, स्किजोटिपल एंड सिजॉइड. ये जस्ट 2-3 वर्ड्स आपको याद रखना है, एंड वेरी सिंपल एग्जाम में आते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट 2 वर्ड्स की वजह से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, है ना. जस्ट 2-3 वर्ड्स याद रखोगे एंड इट इज वेरी इजी टू करेक्ट दिस ऑप्शन, है ना, बहुत इजी होता है क्वेश्चंस. कमिंग टू क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा. इसमें हमारा फर्स्ट है हिस्ट्रियोनिक. सो हिस्ट्रियोनिक इज समथिंग दैट इज वेरी ड्रामेटिक होगा, बहुत ज्यादा ड्रामा क्यून, ऐसे समझ लो ड्रामा क्यून होगा. अब ड्रामा क्यून है वो क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ कि सब उसको अटेंशन दे, है ना. सो बिकॉज ऑफ दे नीड टू बी सेंटर ऑफ अटेंशन, चाहे कहीं भी वो ही और शी वांट कि मैं एकदम सबका अटेंशन सीकिंग रहूं, है ना. सो बिकॉज ऑफ दैट अब अटेंशन सीकिंग होने के लिए क्या करना होगा, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी अ ड्रामेटिक, एग्जैजरेटेड इमोशंस दिखाना पड़ेगा, है ना. सो दे हैव वेरी ड्रामेटिक एग्जैजरेटेड इमोशंस, लाइक कि मॉर्निंग में वो ऑफिस गया, इवनिंग में घर लौटा, एंड दे हग द पीपल, दे काइंड ऑफ डेट कि वो सालों के बाद आया है ना, लाइक आफ्टर सो मेनी इयर्स वो अपने घर वालों से मिला है. सो दैट काइंड ऑफ एग्जैजरेटेड इमोशन शो करेगा, लाइक मॉर्निंग में ड्यूटी गए, इवनिंग में आया, दैट्स अ नॉर्मल थिंग, है ना. बट दे हग इन दैट वे कि लाइक आफ्टर 2 और 3 और 4 इयर्स के बाद वो लोगों से मिल रहा है, अपने घर वाले लोगों से मिल रहा है. सो दैट काइंड ऑफ ड्रामेटिक एंड एग्जैजरेटेड इमोशंस होता है. एंड बिहेव इन सेक्सुअली सिडक्टिव वेज एंड यूज फिजिकल अपीयरेंस सो दैट एक सेंटर ऑफ अटेंशन बन के रहे, ठीक है ना. सो दैट इज द हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. अगेन द मैनेजमेंट इज साइकोथेरेपी एंड एंटीडिप्रेसेंट्स, ठीक है. देन सेकेंड वन इज नार्सिसिस्टिक्स. सो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होगा, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू कि उसको एक सेल्फ इंपॉर्टेंस मिले, ना. सो एक्सेसिव सेल्फ इंपॉर्टेंस, मतलब कि मैं ही मैं हूँ,
like I have some natural power, I have connection with Modi ji, I have connection with Ambani, है ना. So like मेरी this kind of like importance वो अपने आप को देगा, है ना. So belief about being special and talented, fantasies of unlimited success and power, but in reality उसके पास ऐसा सच कुछ है नहीं, बट उसको लगता है कि उसके पास कुछ स्पेशल टैलेंट है, पावर है ना. सो दैट काइंड ऑफ फैंटेसीज दे हैव, काइंड ऑफ ग्रैंडियोसिटी बिहेवियर, ग्रैंडियोसिटी उसके अंदर रहेगा ना. सो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी प्रेजेंट इन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. तो अपने आप को बहुत सेल्फ इंपॉर्टेंस देगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको क्या होगा, पुअर टॉलरेंस टू क्रिटिसिज्म एंड अंडरलाइन फ्रेजाइल सेल्फ स्टीम. बहुत फ्रेजाइल सेल्फ स्टीम होगा, अंदर से बाहर से ही विल शो कि वो बहुत स्ट्रांग है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ स्टीम है, बट अंदर से बहुत फ्रेजाइल, बहुत वीक सो होगा उसको, है ना. सो दैट इज वेरी अंडरलाइन फ्रेजाइल सेल्फ स्टीम. ठीक है ना. सो पुअर टॉलरेंस टू क्रिटिसिज्म, अंडरलाइन फ्रेजाइल सेल्फ स्टीम. एंड द मैनेजमेंट इज अगेन साइकोथेरेपी एंड एंटी डिप्रेसेंट्स. ठीक है. सो दैट इज द नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, है ना. ओके. थर्ड वन इज द एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. सो एंटी सोशल मतलब कि सोशल की, सोसाइटी के अगेंस्ट रहेगा वो. तो सोसाइटी के जितने भी रूल्स, नॉर्म, रेगुलेशंस है, सबको वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, सबको वो फॉलो नहीं करेगा. सो एंटी सोशल, और इट इज ऑल्सो नोन एज डिसोशल personality disorder. So in that, what is like unlawful behavior, no regard for rights of others and violations. So किसी को पीट देगा, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेगा, है ना, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा. लैक ऑफ गिल्ट एंड रिमोर्स. द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि किसी के राइट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी के राइट को क्या बोलते हैं, इंटरफेयर कर रहा है, एंड उसको कुछ काइंड ऑफ गिल्ट भी नहीं होगा कि उसने कुछ गलत किया है ना. सो लैक ऑफ गिल्ट एंड रिमोर्स. एंड ऑफ कोर्स सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स भी प्रेजेंट होते हैं इन एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. ठीक है. मैनेजमेंट अगेन दैट इज साइकोथेरेपी, एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स, कार्बामेजेपिन एंड बीटा ब्लॉकर इज ऑल्सो हेल्पफुल इन एंटी सोशल पर्सनैलिटी disorder. ठीक है. And the fourth one, very very important, that is the borderline personality disorder. Many times, I think 3 to 4 times the question has asked from this personality disorder, that is borderline. So borderline मतलब नाम से ही पता चल रहा है, as the name suggests, borderline means something that is very very unstable, है ना. So they have unstable relationship, unstable self image, unstable emotions. So everything is very very unstable, है ना. So borderline personality disorder और emotionally unstable personality disorder भी हम इसको बोलते हैं. In that the person having very emotional instability होगा, है ना. impulsivity बहुत ज्यादा होगा. सो लाइक इम्पल्सिविटी इतना होगा कि लेट्स सपोज वो कहीं शॉप पे गया एंड ही सॉ एनी लाइक काइंड ऑफ आर्ट, एंड वो इतना ज्यादा इम्पल्सिव होके कि इस आर्ट से मैं कुछ इस तरीके से करूंगा कि मैं इसको बहुत लाइक बहुत अच्छा कुछ कर दूंगा, या बहुत महंगे में, बहुत कॉस्टली में इसको सेल करूंगा. सो उस तरीके से आके वो कुछ 100-200 की चीज 5000 में ले लेगा एंड घर लाके वो कुछ नहीं करेगा. सो दैट इज द इम्पल्सिविटी, बहुत ज्यादा होगा उसके अंदर. And there is very intense but unstable relationship. It's like कि what is that कि he will say, he or she will say कि you are something the best man or woman in the world for me. I can't live without I can't live a second without you, है ना. And इन अनदर सेकेंड लेट सपोज उसने कुछ मैसेज किया एंड लाइक रिप्लाई नहीं आया, तो क्या बोलेगा, यू आर द वर्स्ट पर्सन फॉर मी, आई कांट लिव विदाउट यू. सो दैट इज दैट काइंड ऑफ अनस्टेबल रिलेशनशिप. ठीक है. सो एक टाइम पे बहुत ज्यादा इंटेंसली लव आएगा और एट द अनदर टाइम बहुत ज्यादा काइंड ऑफ हेट होगा उसके लिए. सो दैट इज द इंटेंस बट अनस्टेबल रिलेशनशिप होगा. सो लाइक आते दिन उसके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड चेंज होते रहेंगे. ठीक है ना. सो दैट द काइंड ऑफ. एंड द फियर ऑफ अबंडनमेंट मतलब कि जैसे कि उन्होंने मैसेज किया, मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, लाइक जस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स डिले होगा, तो उससे लगेगा कि ये मुझे मेरी केयर नहीं करते हैं. सो दैट काइंड ऑफ फियर ऑफ अबंडनमेंट. ठीक है. सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो लाइक मल्टीपल कट्स एंड ऑल होगा उनकी बॉडी में. सो सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर होगा, बट दे डोंट वांट टू लाइक दे जस्ट वांट टू हार्म देमसेल्व्स, बट वो खुद को मारना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू डाई देमसेल्व्स, है ना. सो वो जो इंजूरियस बिहेवियर होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ कि इसको एक अटेंशन मिले काइंड ऑफ, है ना. सो दैट इज. एंड आइडेंटिटी एंड जो सेल्फ इमेज है वो बहुत अनस्टेबल होगा. आइडेंटिटी जो है वो
डिस्टर्बेंस होगा, इट मीन्स कि सडन चेंजेस इन लाइफ गोल्स, वैल्यूज, करियर प्लान्स, है ना, सेक्सुअल आइडेंटिटी। तो एट वन टाइम ही विल से कि मैं डॉक्टर बनूंगा, अनदर टाइम ही विल से कि मैं इंजीनियर बनूंगा, अनदर टाइम से मैं ये बनूंगा। सो बहुत अनस्टेबल उसका करियर गोल होगा, कुछ डेफिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्प्लिटिंग होगा उसके अंदर, है ना। So, एक तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर और सुसाइडल टाइप का बिहेवियर होगा। एंड स्प्लिटिंग होगा मीन्स की व्हाट इज दैट कि ही और शी विल सी पर्सन आइदर वेरी गुड और वेरी बैड, है ना। लेट्स सपोज एक बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक पर्सन है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आपने उसके पास गए, आपने हिस्ट्री लिया, उन्होंने आपसे बात किया, एंड देन दिस पर्सन विल से कि यू आर द बेस्ट नर्स in the world or in the hospital. एंड अनदर टाइम लेट सपोज आपने उसने कुछ बोला, आपने उसकी नहीं मानी, कुछ भी एनीथिंग कुछ भी हैपन हुआ, तो व्हाट ही विल से यू आर द वर्स्ट पर्सन, द बैड पर्सन, है ना। सो दैट काइंड ऑफ स्प्लिटिंग, मतलब कि आइदर ही सी अ पर्सन वेरी गुड और वेरी बैड, है ना। सो इन बिटवीन नहीं सोचेगा, या तो बहुत ही अच्छा है या बहुत ही बुरा है। सो दैट इज द स्प्लिटिंग नेचर होगा। सो इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इम्पल्सिविटी, इंटेंस बट अनस्टेबल रिलेशनशिप, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस, अनस्टेबल सेल्फ इमेज, splitting, fear of abandonment, that is all the characteristics that is present in borderline personality disorder. Very very important, this is something very very important because many time the question has repeated from these topics, that's why I'm saying that this is very very important, otherwise all the personality disorder is important, ठीक है। मैनेजमेंट अगेन साइकोथेरेपी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डीबीटी, दैट इज डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी एंड एंटी डिप्रेसेंट्स। ओके, coming to the next, that is cluster C. In cluster C personality disorder, the first one is avoidant or anxious personality disorder. So in that, what is avoidant, मतलब कि वो avoid करेगा, क्या avoid करेगा, like excessive sensitivity to rejection, है ना, वेरी सेंसिटिव होगा कि सब मुझसे रिजेक्ट करेंगे। फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड और नॉट एक्सेप्टेड बाय द अदर्स, मतलब वो मिलके रहना चाहेगा बट उसको लगेगा कि सब मुझे रिजेक्ट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। सो दैट्स व्हाई ही और शी अवॉइड द सोशल एक्टिविटीज ड्यू टू फियर ऑफ रिजेक्शन, है ना। सो दैट इज द अवॉइडेंट, एवरीथिंग ही अवॉइड, everything he or she avoid, so that is the avoidant personality disorder. The management is psychotherapy, beta blocker or selective serotonin reuptake inhibitors. Then the second one of cluster C personality disorder, that is dependent personality disorder. So as the name suggests, dependent, it means for each and every simple activities के लिए भी वो क्या होगा, दूसरों पे डिपेंड होगा। So that is let others take decision for their life. So like very simple things के लिए भी वो दूसरों की डिसीजन पे डिपेंड होगा, है ना। सो नीड रीअश्योरेंस फॉर सिंपल डिसीजंस टू एंड अनकंफर्टेबल व्हेन अलोन, मतलब ईच एंड एवरीथिंग के लिए वो दूसरों पे डिपेंड रहेगा, इवन अ स्मॉल सिंपल थिंग्स के लिए भी, है ना। And for the management, again the psychotherapy, beta blocker and selective serotonin reuptake inhibitors. So that is the dependent personality disorder, है ना। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, avoidant and dependent वाला। And the third one is OCPD. So एक हमारा जो डिजीज है जो हम पढ़ेंगे इन लाइक कमिंग सेशन में, that is obsessive compulsive OCD, obsessive compulsive disorder, and ये हमारा है obsessive कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो अगर आपसे डिफरेंस पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन OCPD एंड OCD, सो OCPD क्या है, OCPD इज ईगो सिंटोनिक and this one is ego dystonic. It means ego syntonic means कि OCPD पर्सन को क्या लगेगा, जो मेरा बिहेवियर है, जो मेरा ईगो है, that is sync, that is normal, but the OCD person will understand कि yes, this is ego dystonic, this is something abnormal thing is happening in me. So that is the difference between ego syntonic and ego dystonic. So OCPD क्या है, it is ego syntonic. Even all the personality disorder क्या है, ego syntonic है सब, तब सारे उनको लगेगा that is the normal thing that is present in me, कुछ भी abnormal नहीं है. So that's why he don't want to change self, है ना. So that is the ego syntonic. So OCPD, obsessive compulsive personality disorder, it is also known as anarchistic personality disorder.
एंड इन दैट जैसे हमारा ओसीडी है ना, हर चीज से बहुत ज्यादा प्रीऑक्यूपाइड होगा, सो दैट इज द सेम। ओसीपीडी में क्या है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी प्रीऑक्यूपाइड विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो लाइक एवरीथिंग उसको एकदम परफेक्टली टाइम पे चाहिए, परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, एकदम बहुत रिजिड होना चाहिए कि यस इस टाइम पे होना चाहिए तो होना चाहिए। So that is something very very preoccupied with rules and regulations, excessively organized होना चाहिए, perfectionism होना चाहिए, excessive perfectionism होना चाहिए, that slows them down, stubborn and inflexible, उसको अपने आप को चेंज नहीं करना, बहुत stubborn और inflexible होगा, और हर चीज में एकदम perfection होना चाहिए तभी करूंगा अदरवाइज नहीं करूंगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट perfectionism जितने भी स्मॉल से स्मॉल एक्टिविटीज है वो भी सब क्या होगा, स्लो डाउन होगा, है ना। क्योंकि अब उसको कुछ भी करना है, लेट्स सपोज उसको किसी चीज का नोट्स भी बनाना है तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तो उसमें उसका लाइक जो अदर एक्टिविटीज है वो डिले होगी एंड दैट्स वाई स्लोज डाउन होगा, है ना। सो परफेक्शनिज्म दैट स्लोज देम डाउन, है ना। सो नो टाइम फॉर लीजर, क्योंकि वो सारा का सारा जो अपना काम है वो कहाँ रूल्स रेगुलेशंस एक्सेसिवली ऑर्गेनाइज और हर चीज को परफेक्ट करने में लगा रहा है। सो दे हैव नो टाइम फॉर लीजर, नो सेंस ऑफ ह्यूमर, है ना। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर ओसीपीडी। सो इसमें से जो दो दो तीन तीन इंपॉर्टेंट कीज है ना, वो बेसिकली आपको याद करना है, जो कि बेसिकली एग्जाम में आपको जो ऑप्शंस को चूज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। मैनेजमेंट अगेंस्ट साइकोथेरेपी एंड सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक्स इनहिबिटर्स। तो ये था हमारा क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। वेरी सिंपल, आप 1 से 2 बार रिवाइज करोगे, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, सो बाय दैट हमारा क्लास फिनिश्ड होता है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ साइकियाट्री, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।